Hello and welcome from Government College Bhaba. This is Manpreet Singh, and for BA Part 2nd English Literature we will move on to the second unit. We will return the paper first again, and poetry and drama section has this poem Sohrab and Rustam. It's a piece of a poem by Matthew Arnold, the third Victorian poet. So far we have read Tennyson and Robert Browning, so we will move on to the third major poet from this era, Victorian era, Matthew Arnold. So first we will read about the poet Matthew Arnold. This is picture, this is his image. Matthew Arnold. About the poet, Matthew Arnold was born on 24th December 1822 and he died on 15th April 1888. He was an English poet, cultural critic who worked as an inspector of school. He was a son of Thomas Arnold, the celebrated headmaster of Rugby School. तो इनका परिवार भी जो है वो renowned family है, not an unknown or less known family. His family was renowned. His father was a headmaster, a renowned, celebrated headmaster of Rugby School. उनके भाई जो हैं Tom Arnold, he was a literary professor, and his other brother William Dalefield Arnold, he was a novelist and colonial administrator. Matthew Arnold has been characterized as a sage writer. Matthew Arnold को एक sage writer कहा जाता है, a type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues. तो उनकी poetry में देखने को मिलता है that he is like a preacher. He preaches the reader about the social and contemporary social issues. He was the eldest son of Thomas Arnold and his wife. So his mother's name was Mary Penrose Arnold, born on December 1822 at Laleham on Thames, Middlesex. Middlesex जो काउंटी है वहाँ के टेमस नदी के किनारे लेलहैम, वहाँ इनका जन्म हुआ था. In 1836, Arnold was sent to Winchester College, but in 1837 he returned to Rugby School. He moved to the sixth form in 1838 and so came under the direct tutelage of his father. पहले जो है विंचेस्टर कॉलेज गए, फिर 1837 में वापस रग्बी स्कूल आ गए, उसके बाद ये सिक्स फॉर्म में गए और 1838 में फादर के डायरेक्ट उनके ट्यूटलेज में उनके डायरेक्ट स्टूडेंट हो गए, यानी कि इनके पिता हेडमास्टर थे और वहीं पे पढ़ रहे थे. He wrote verse for a family magazine and won a school prize for his poem Alaric at Rome. इस पोएम के लिए उन्हें स्कूल प्राइज भी मिला. ये पोएम उन्होंने स्कूल में लिखी. In November 1848, 17 Arnold matriculated at Balliol College, Oxford, where in 1841 he won an open scholarship, graduating BA in 1844. तो इन्होंने Balliol College में इनकी स्टडी हुई, उसके बाद इन्होंने BA की डिग्री ली 1844 में. During his student years at Oxford, his friendship became stronger with Arthur Hugh Clough. Arthur Hugh Clough, he was his best friend, a rugby pupil who had been one of his father's favorites. Arthur Hugh Clough इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो खुद भी थोड़ा पोइट्री लिखते थे, और उनकी डेथ के बाद, ऑर्थर ह्यू क्लो की डेथ हुई 1861 में, उसके बाद इन्होंने एक एलेजी लिखी थारेसिस नाम से जो फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए ऑर्थर ह्यू क्लो फेमस हुए. Wishing to marry but able to support a family on the basis of a private secretary, Arnold sought the position of and was appointed in April 1851 one of Her Majesty's Inspectors of Schools. So 1851 में इन्होंने इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल की पोजीशन ले ली और इसके बाद इन्होंने शादी भी की. 2 months later he married Frances Lucy, उनसे इन्होंने शादी की, daughter of Sir William Richmond, Justice of Queen's Bench. In 1852 Arnold published his second volume of poems, Empedocles on Etna. इनकी second volume of poems जो है, ये important point है, 7 number point. इसमें वो बताते हैं कि उनकी जो सेकंड कलेक्शन था, पहला सिर्फ पोइम्स के नाम से था, उसके बाद एम्पेडोक्लस ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, इस कलेक्शन को इन्होंने छपवाया 1852 में. उसके बाद 1853 में ही पब्लिश्ड पोइम्स अ न्यू एडिशन, इसी का एक नया एडिशन आया जिसमें से इन्होंने एम्पेडोक्लस ऑन एटना को हटा दिया, उसकी जगह कुछ नई पोइमें ऐड की जैसे सोहराब एंड रुस्तम एंड स्कॉलर जिप्सी. उसके बाद इन 1854 पोइम्स सेकंड सीरीज अपीयर्ड. सेकंड सीरीज इनकी पोइम्स के नाम से आई. ऑल्सो सेक्शन इट इंक्लूडेड द न्यू पोइम बाल्डर डेड नाम से इनकी एक नेक्स्ट पोइम जो वो ऐड की गई. इन 1865 अर्नोल्ड published essays in criticism, so he was also a critic, so we have his critical work 1865 में जो published हुआ, essays in criticism first series. फिर उसके बाद काफ़ी सालों बाद essays in criticism second series would not appear until November 1888.
शॉर्टली आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ। इनकी डेथ हो गई थी 1887 में, तो उसके बाद इनको ये छपा था इनका पोस्टमसली। इन 1866 ही पब्लिश्ड थायरोसिस, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया था। 1866 में इनकी थायरोसिस नाम की हिज एलजी छपी थी। क्लो हु हैड डाइड इन 1861, इनके मित्र ऑर्थर ह्यू क्लो जिनकी डेथ हुई थी 1861 में, उनकी मौत के बाद उनके दुख में इन्होंने ये पोएम लिखी थायरोसिस। जो जब भी एलर्जी का जिक्र होता है, एलर्जी के बारे फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था, सेकंड ईयर में भी एलर्जी एज ए लिटरेरी टर्म है। तो व्हेन एवर वी रीड अबाउट एन एलर्जी वी रीड अबाउट थायरोसिस। थायरोसिस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक है। उसके बाद इनका जो सोशल क्रिटिसिज्म है, सामाजिक आलोचनात्मक वर्क जो है, उसमें कल्चर एंड अनार्की इनका फेमस वर्क है। एंड ऑल्सो मेजर वर्क इन सोशल क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1869। लिटरेचर एंड डॉगमा जो इनका रिलीजियस क्रिटिसिज्म है, धार्मिक क्रिटिसिज्म है, जिसमें लिटरेचर एंड डॉगमा नाम का इनका वर्क है, वो छपा था इन 1873 में। एंड ऑल्सो मेजर वर्क इन रिलीजियस क्रिटिसिज्म अपीयर्ड इन 1873। सो अबाउट दिस पोएम सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड, इसका पूरा टाइटल है सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड। व्हाट इज़ दिस पोएम? इट इज़ अ बिग पोएम, अ वेरी बल्की पोएम ऑफ 892 लाइन्स ऑल इन ब्लैंक वर्स। सो इट इज़ अ नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम वो होती है जिसमें समथिंग इज नरेटेड, अ स्टोरी इज नरेटेड थ्रू पोएट्रिक मीडियम विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम्स। इसमें थीम्स जो हैं बहुत ही ट्रेजिक हैं। फर्स्ट पब्लिश इन 1853 बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये पोएम जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा 1853 में सबसे पहले छपवाई गई थी, जिसमें पोइट्री न्यू एडिशन वाले कलेक्शन के साथ। पोएम ये ली कहाँ से गई है ये स्टोरी जो आती है, द पोएम रिटेल्स अ फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसी's Persian epic शाहनामा relating how the great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son Sohrab in single combat। तो इसमें रुस्तम जो है वो अपने बेटे अननोइंगली, अपने ही बेटे सोहराब को एक सिंगल हैंडेड कॉम्बैट में मार देता है। ये स्टोरी जो है शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, जो एक पर्सियन, एक फ़ारसी कवि थे, उनकी लिखी गई शाहनामा एक बहुत बड़ी रचना है। उस रचना में से ये स्टोरी ली गई है। तो थोड़ा फिरदौसी की बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने इनकी ऐड की है फिरदौसी की। अबू कासिम फिरदौसी, he was born in 940 and died on 1020. In 1020 was a Persian poet and the author of Shahnama Book of Kings। इनकी जो शाहनामा है बहुत बड़ी बुक है, जिसे बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक पोएम्स क्रिएटेड बाय सिंगल पोइट। एक ही पोइट के द्वारा लिखी गई वन ऑफ द लार्जेस्ट एपिक पोएम में से एक है। एंड नेशनल एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान की नेशनल एपिक, राष्ट्रीय काव्य महाकाव्य से मतलब उसकी महाकाव्य भी घोषित किया गया है। फिरदौसी इज सेलिब्रेटेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन पर्शियन लिटरेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर में इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट फिगर्स में से एक माना जाता है। तो अर्नोल्ड ने इस स्टोरी को लिया फिरदौसी की स्टोरी में से, उस स्टोरी के ऊपर एक पोएम लिखी 892 लाइन्स की इन ब्लैंक वर्स। उसके बाद उसमें से कुछ लाइनें आपके सिलेबस में हैं जो 838 से लेके 892 तक। सो इस लाइन में अर्नोल्ड हु वाज अनेबल टू रीड द ओरिजिनल, अर्नोल्ड जो है जिनके पास, क्योंकि वो फारसी में लिखी हुई रचना है, अर्नोल्ड इंग्लिश थे और उन्हें फारसी नहीं आती थी, तो वो ओरिजिनल तो नहीं पढ़ पा रहे थे। सो ही रिलाइड ऑन समरीज ऑफ द स्टोरी इन जॉन मैल्कम्स हिस्ट्री ऑफ पर्सिया। जॉन मैल्कम और सेंजबुआ का रिव्यू ऑफ फ्रेंच प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ फिरदौसी, इन दोनों लेखकों ने जो पर्शियन लिटरेचर के रिव्यू लिखे, हिस्ट्री ऑफ पर्सिया लिखा, उस स्टोरी में से उनकी लिखी हुई ट्रांसलेशंस में से ये स्टोरी ली और उसके बाद उन्होंने ये पोएम लिखी। इन सोहराब एंड रुस्तम अर्नोल्ड अटेम्प्टेड टू इमिटेट द ग्वेंचर एंड रैपिडिटी ऑफ होमर स्टाइल विच ही वाज टू डिस्कस इन हिज लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861। सो ही वाज क्रिटिक और इन्होंने ट्रांसलेटिंग होमर नाम से और ट्रांसलेटिंग होमर्स नाम से, होमर नाम से लेक्चर्स जो हैं इनके हैं, जिनका बाद में लिखित रूप में पब्लिश भी हुए हैं।
उसमें इन्होंने कहा कि कैसे होमर की तरह ग्रैंडर एंड रैपिडिटी, मतलब इस प्रकार की शान के साथ और रैपिडिटी के साथ किसी रचना को, किसी नरेटिव को सुनाया जाए, ये उन्होंने अटेम्प्ट किया खुद इस पोएम के अंदर। जो वो एक दूसरे महान कवि होमर के बारे में हम जानते हैं कि होमर ने इलियड लिखा। पिछला जो हमने पता ओडेसियस की जो स्टोरी लोटस ईटर्स में पढ़ी थी, उसके लेखक भी होमर थे जो कि ग्रीक थे। तो ग्रीक लेखक होमर और उनकी तरह ही उनको ट्रांसलेट कैसे करना है ये बताने के बारे में उनके जो लेक्चर है, उनकी तरह ही ग्रैंडर एंड रैपिडिटी ये शो करना चाहती है अपनी इस पोएम में। ठीक है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 892 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स। पोएम के अंदर कुल मिला के 892 लाइनें हैं ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के बारे में आप सब जानते हैं, जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर में लाइनें होती हैं और उन्हें आपस में राइम नहीं किया जाता, वो राइम नहीं होती, तो उसे इसलिए ब्लैंक वर्स कहा जाता है। पोएम के कुल मिला के जो लाइनें हैं उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक स्टैंडर्ड जो है, वैसे तो जितनी लाइनें आपके सिलेबस में हैं 838 से लेकर 892 तक, उसमें सोहराब की डेथ और उसके बाद प्रकृति और सेना और सब कुछ, किसी की मौत के लिए कोई नहीं रुकता, ये वाली थीम जो है उसके बाद जो है वो इस सेकंड पार्ट में है। सो हम अगली वीडियो में इस पोएम का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और फिर हम उस पोएम के बारे में उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसकी कुल मिला के 3 वीडियोस पोस्ट की जाएंगी। अब तक हमने मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में पढ़ा। आप इनके छोटे नोट्स बना सकते हैं, इनके जन्म और डेथ के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और इनका करियर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु वर्कड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग हिज करियर। सो इनके बारे में आ सकता है। मैथ्यू आर्नोल्ड रग्बी के बारे में पूछा जा सकता है, इनके पिता थॉमस आर्नोल्ड के बारे में। इस प्रकार के कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुख्य जो स्टोरी है वो यही पूछा जाता है अक्सर कि ये स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है और इस स्टोरी का जो मतलब सोर्स क्या है। सो सोर्स है फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा, उसमें से ये स्टोरी ली गई है। और फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी एक पर्शियन लेखक थे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, आप यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं और आप इस पढ़ने का प्रयास करें। जो पीपी फॉर्मेट है, पावर पॉइंट फॉर्मेट है, ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसे पढ़ें और टेक्स्ट भी पोएम का साथ ही शेयर कर रहा हूँ। इसे पढ़ने का आप स्वयं भी प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।